पहले जी, is this a mid review presentation or is this the final presentation? सर फाइनल, क्योंकि हमने ऊपर वाली चीज कॉपी पेस्ट कर ली थी तो वो ये मिड रिव्यू की कॉपी कम से कम ये तो चेंज कर देते ना। चलो सर ये पहला पेज कॉपी होगा। सर ये फजील परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड करेगा। अच्छा सर, तो कैन यू हियर मी सर? हाँ फजील। हाँ, तो सर आई विल बी टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हम लोग बेसिकली एट दवाई वी वर ऑल वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स. I was working in performance marketing and I'll be covering that segment. So Usmani, if you could move the slide. अच्छा, तो सर I basically work with 3 channels. जब मैंने start किया था I was given a document and I was told कि मुझे इस पे optimize करनी presentations. I had to optimize my conversions on post notifications, email and SMS. Initially हम लोग Mixpanel use कर रहे थे, which is a product analytics tool. अरे एक मिनट तो रुको, पहले ये तो बताओगे ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, कौन सी कंपनी थी जिसके लिए तुम प्रोजेक्ट कर रहे थे, या बस डायरेक्ट शुरू हो जाओगे? सॉरी सर, बताता हूँ सर. So we were working with दवाई और मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली कंज्यूम शुड हैव बीन अ स्लाइड जो कि ये बताए, अगर कोई ऑडियंस बैठी होती जिसके सामने तुम्हारी फाइनल प्रेजेंटेशन हो रही होती तो उनको तो तुम बताते ना कि भाई दिस वाज आवर फाइनल ईएलपी, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोजेक्ट था और हमने इसमें ये जो चीजें सीखी हैं उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे या व्हाटएवर, एंड दिस इज द टीम दैट वी हैड. ठीक है, एक प्रेजेंटेशन को इसी तरह से करते हैं ना सर. हम एक काम कर, हाँ सर, तो वी वर वर्किंग विद दवाई. करो, दोबारा से जरा शुरू करो. जी जी सर. So we were working with Dawai, which is one of the first startups in Pakistan that is revolutionizing healthcare in Pakistan through a tech platform. It started in 2014 with a seed funding from Sarmayakar and from Kingsway Capital. We were a group of 5 people: Mohammad Mustafa, Fadil Ayaz, Sajwar Channa, Iman Damir, and Zuhad Ahmed. And we were basically we took on the project from the IBA's list of projects that came in. Our main contact person was Merilu, who was the HR head, but the project was started by an IBA alumnus who's working at Dawai, Taha Rafiq. So all of us are working in different domains. I was working in performance marketing and customer relationship management. Mujtaba and Sajwar were working in teleconsultation and B2B. Iman was working on social media and Zuhad was working as a category manager. Moving forward, we divided the presentation into different domains. So we'll be covering our own domain. My domain of performance marketing. Mustafa, if you could cover the presentation. So my domain was performance marketing, and basically I needed to work on 3 main channels. I was given push notifications, emails, and SMS. And what I had to do was I had to optimize the content because the marketing team at Dawai is not a dedicated marketing department. There's no dedicated marketing department. There's just a performance marketing department, which basically comprises 2 to 3 people maximum. Right? So there weren't a lot of people who were technically geared towards this field, and I was given the responsibility to optimize these channels. So initially हम लोग Mixpanel use कर रहे थे, which is the industry leader in product analytics tool. We were using its communication channel and its user interface to understand कि भाई हमारी audience कैसी है and how we could engage with them, how we could create cohorts, how we could target them. However, Mixpanel is stopping its messaging functionality by the end of this year. So within the domain of my project, it was also that कि मैंने एक पूरा नया communication tool भी integrate करवाया था, which is MoEngage, जो 3rd number पे लिखा हुआ है. MoEngage is basically only a communication tool, but it is a very powerful tool. It is an Indian tool, और हम लोग basically अब तक इसकी integration कर रहे हैं और main integration हो गई है, but जो main loopholes जो मिलते हैं we're still testing the product, और जो main loopholes मिल रहे हैं we're getting it integrated again. At the same time, Mixpanel started on the Firebase use करते because Mixpanel did not have the integration for iOS at the time that I joined. So हम लोग Firebase use करते for push notifications on the iOS channel. At the same time, हमने SMS के tool में we had an SMS tool called Outreach, और उसमें हमारे थोड़े मसले आ रहे थे, duplication आ रही थी SMS की, और हमारा user experience खराब हो रहा था, user को spam हो रहा था. So we moved away from that tool to हमने Intellectual Solutions का SMS tool hire किया, which is again a very good tool, Pakistani tool है. But it has good clients and it has a good service, it has a good user interface, and it's still more affordable than Outreach. क्या नाम है?
I'm sorry sir. टूल का नाम क्या है? टूल का नाम है इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस SMS. इनके 3-4 टूल्स हैं, डिजिटल के भी हैं और ये SMS का टूल हमने लिया है इनसे. ठीक है. Man, if you could go to the next slide. ठीक है. So sir, within optimizing the performance marketing campaigns, सबसे पहली चीज हमारी कार्ट मैनेजमेंट की ऑटोमेटेड कैंपेन थी, चल रही थी. However, the campaign was very haphazard. एक तो मिक्समैन में फंक्शनैलिटी नहीं होती कि आप कस्टमर को बताओ कि भाई कौन सी चीज आपके कार्ट में पड़ी हुई है. ठीक है, तो हम लोग उसको तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते थे. बट एट द टाइम दैट आई जॉइन, मैंने ये किया कि आई मेड इट अ ह्यूमनाइज्ड द टूल लिटिल. मैंने उसमें एक हमारे कस्टमर सर्विस हेड का पोर्ट्रेट डाल दिया. आई चेंज द कंटेंट टू मेक श्योर कि इट रिफ्लेक्टेड स्पेसिफिकली कि आपसे कोई ह्यूमन बात कर रहा है rather than a bot. तो ये CTA बटन थोड़ा above the fold ले आया ताकि the moment the customer opens the email, he sees the CTA button rather than having to scroll down and then see it. उसके headers जो हैं थोड़े से different हो रहे थे, तो we changed the headers after confirmation from my supervisor and the footer too. At the same time हमारे जो push notifications थे, हम लोग यूजुअली सिर्फ टेक्स्ट भेजा करते थे एंड वी डिडंट हैव एनी पिक्चर. अगर हम पिक्चर भेजते भी थे तो ये आपको पिक्चर नजर आ रही है थर्ड नंबर पे जो थोड़ी सी कटी हुई है पिक्चर, हम ऐसी पिक्चर भेजा करते थे which usually made for a bad customer experience और उसको कस्टमर को पता नहीं चलता क्या मिल रहा है उसको. तो I changed the dimension of the picture, I got new panel design and I changed the text of the picture कि अगर हमें कुछ चीज पुश करनी है and we are giving a promo, तो वो promo within the first five words मिल जाए कस्टमर को. इसकी वजह से what we saw recently, we saw a big rise in our services. हम लोग प्रोमो पुश कर रहे थे which got a huge response और हमारी ईद कैंपेन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका. Mustafa, if you could go to the next slide. अच्छा, नेक्स्ट जैसे मैंने शुरू में बताया, Device does not have a proper marketing department. कोई ब्रांडिंग के स्पेसिफिकली वो नहीं है जो हम भी बात करेंगे थोड़ी देर में. But to make it a little more cohesive, the experience a little more cohesive and make sure that everyone knows how many people we're targeting, how we're targeting, what we're doing, and what campaigns can be pushed through these targeting. I devised a new calendar. इस calendar पे basically weekly मेरा calendar होता है. I decide whatever I'm going to push in that calendar, what service is going to go out. हमारे पास 3 main services हैं, वो तो जाती हैं, but I leave some space out for ad hoc campaigns और proper branding campaigns जो हमारी होती हैं. On the left is that calendar. On the right, we decided to make a new calendar, जिसमें हम लोग basically decide करेंगे कि हम लोग कितने लोगों को target कर रहे हैं and how we're targeting, what we're pushing them. इससे ये होगा कि the data team, I could correspond with the data team and tell them कि भाई ये गया था on that day, so that हमारे पास जितने भी spikes आते हैं in our data, कि इस दिन ज़्यादा sales हुई, इस दिन कम sales हुई, we can understand कि वो spikes क्यों हैं and we can attribute the results correctly to our marketing campaign. Mustafa, if you would go to the next slide. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारी ट्रैकिंग बहुत ऑफ थी. जब हमने when we started, we didn't have specific UTM parameters in our emails जिनसे ट्रैक हो सके कि भाई ये बंदा इस चैनल से आ रहा है हमारी वेबसाइट पे. बट UTM पैरामीटर की सेंस इसलिए भी नहीं बनी थी because we were basically marketing our application. Recently, our website got updated and we have new functionality on the website. हमने consultations book करना शुरू कर दिया वेबसाइट से. तो we needed something to make sure कि हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हम लोग एनालिटिक्स से ट्रैक करना. So I made sure we had UTM parameter protocols for SMS tracking and email tracking. SMS में what we do is क्योंकि UTM बहुत बड़ा हो जाता है, we shorten it with Bitly and then we send the SMS. For emails, we send the UTM directly. Plus, identified the specific segments and tagged them. हमारे most lucrative segments were feminine care products and baby care products. I automated some campaigns, which was a welcome campaign, resurrection campaigns, doctor consultation campaigns, which is Mani will talk about later, and cart abandonment campaign. At the same time, जो हमारा नया टूल है मूविंग गेज I talked about, मैं उसकी इंटीग्रेशन पे भी काम कर रहा था and we identified a lot of errors और उसमें हम लोग मसले सॉल्व करवा रहे हैं. That's an ongoing process. So that was all for the performance marketing. ठीक है, गुड जी. नेक्स्ट प्लीज. Next, social media marketing. Assalamualaikum everyone, this is Iman Tanveer and I was basically working as a social media marketing intern as part of my ELP at Davai.uk. So just to reiterate what I did from January through March and till May end, to summarize all of that, I was basically looking after revamping and creating content for the Vice page. Which means Instagram and Facebook pages में जो भी content डल रहा था according to the global health calendar, I was identifying those events
and creating relevant content regarding it. So if you can see 1st April को when we last had our mid-review session, तब हमारे 14.7K followers थे. But अगर आप 31st May का देखें तो उसमें a few hundred followers have increased. So which proves that जो हमारी basically जो भी हम content डाल रहे थे for engagement purposes, that was successful and we were actually reaching out organically to people, also via a paid promotion as well, but it was organic. So it was basically effective. Move forward. So I was not only creating content for their social media pages, but we were also creating separate content for stories. As part of this जो मेरा domain था उसमें I was also looking after making monthly social media reports जिससे I would analyze कि कैसी performance थी for the entire month, and उससे फिर we would identify कि which areas would need more improvement. So by March end we identified that the followers तो बढ़ रहे हैं on the Instagram pages, but the number of views on stories, it's not as much as we would want. So we started developing more interactive content for the followers ताकि वो उससे वो learn भी करें and engagement भी बढ़े उससे. So as you can see through these screenshots, we came up with different MCQs, polls to test them and to give them knowledge, ताकि they also, they look forward to watching the stories and they don't just tap away. And other than that, I was also looking after, as previously discussed, I was also looking after revamping the product Naturals, which is an organic oil. And uske page pe complete revamping ka process is still ongoing. Jisme I was also looking after the product photography ताकि जो नया जितनी नई pictures हो वो बिल्कुल नए template पे एक नए from scratch develop हो on the page. And so I read all the previous content and उसके ऊपर even though उससे paid promotions अभी नहीं किए because it's still in the process the page, but organic reach उसकी बढ़ रही है, and even without paid promotions, a few as you can say orders are still coming in. So that is that. Other than that, I was also, even though it's not directly related to my work, but I was also assigned the task of revamping the Wise guidebook. So जो उनकी policies थी, जो old policies, outdated policies थी, उनको replace किया with the new current policies. And जितनी मेरी knowledge थी of दवाई and the guidance that I got, so I worked upon that. So this is basically the social media reports as I was talking about. हम सारे engagement levels देखते थे and we would just work towards increasing each. So these stats have improved a lot, especially due to the Ramzan deals and the free consultancy vouchers, etc. So that was that. And other than that, Dawai जो है is also working on. I'm just almost about one. Dawai is also working on creating online advertisements, right? Not to be played on TVCs, but generally for their pages. So जो उसकी script होती है and जो उसकी recording होती है, that is also looked after by. But I was also part of their team who came up with the content for the advertisements as well. So that's pretty much about it from my end. Thank you. Good. Ji, commercial. Sir, now me and Sajwar will take over. So our role was to bring business to Dawai. So Sajwar will go with the first two presented slides. Sajwar. Assalamualaikum. My name is Sajwar Janna. Mustafa and I were initially given the telecommunication department. Basically, हमारा टास्क ये था कि जो वीडियो कंसल्टेशंस दवाई के प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं उन पे हम डॉक्टर्स ऑन बोर्ड करें और ज़्यादा उनके साथ एक कमीशन हम सेट करेंगे हर कंसल्टेशन पे दवाई होती है, और साथ साथ हम डॉक्टर्स को कन्विंस करें कि आप शायद अपने पहले अपॉइंटमेंट्स या फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स जो है आप कम से कम दवाई के एप्लीकेशन के थ्रू लें. तो मैंने और मुश्तबा ने पूरी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की जिससे हम डॉक्टर्स ऑन बोर्ड लेके आए. हम सक्सेसफुल हुए 12 डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड लाने के लिए. काफ़ी डॉक्टर्स जो थे वो पाकिस्तान में बेस्ड ही नहीं थे. एक हमने थेरेपिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ऑन बोर्ड किया था
और हमने एक क्या कहते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड की थी जिनकी मेजर कंसल्टेशन जो होती हैं वो इराक से आती हैं। तो जब हमने काफ़ी डॉक्टर्स ऑन बोर्ड कर दिए थे उसके बाद हमने ये जो हम प्लेटफॉर्म है वीडियो कंसल्टेशन का वो हमने बेहतर किया बहुत कंज्यूमर एंड डॉक्टर एंड से। बेसिकली हमने इसमें ये किया था, इसमें प्रोडक्ट रिवैम्प भी पूरा किया था कि जो यूज़र इंटरफेस था उस पे एप्लीकेशन पे वो हमने पूरा रीडिज़ाइन किया था कि बेसिकली जितना कन्वीनियंट हो सके कस्टमर के लिए और डॉक्टर के लिए दोनों के लिए हम उसको कर सकें, ताकि एक जो हमारा सेलिंग पॉइंट है कि क्या कहते वीडियो कंसल्टेशन थ्रू दवाई और कन्वीनियंट वो हम मीट कर सकें। हमने पूरे कैलेंडर डिवाइस किया, कुछ भी डिज़ाइन बनाई पेपर पे कि इसको अब कैसे लेके जाना चाहिए। फिर हमने वो सारी क्या कहते हैं टेक टीम के साथ बैठ के हमने उसको ट्रांसलेट करवाया कि जो भी हमारे वीडियो कंसल्टेशन है वो इनिशियली सेगमेंट वाइज डिवाइडेड हो, उसके विद डॉक्टर्स वाइज डिवाइडेड हो और फिल्टर्स लगे हों जो उसके कंज्यूमर के डिस्क्रेशन पे हो कि वो फिल्टर कभी भी कैसा भी लगा सकता है, वो चाहे डेट का हो, टाइम का हो, अवेलेबिलिटी का हो या स्लॉट नंबर्स का हो। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स पे ये किया था कि हमने डॉक्टर्स की पूरी प्रोफाइल्स उनके हाथ में दी थी कि आप अपनी प्रोफाइल्स पे जो करवाना चाहते लिखवाना चाहते हो हम वो लिख दें। और उसके साथ साथ जैसे ही हम कोई डॉक्टर ऑन बोर्ड करते थे उसकी एक क्या कहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट हम लोग डाल देते थे अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और फेसबुक पे दोनों पे, और उसको हम बूस्ट करते थे ताकि उन डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। क्योंकि जब डॉक्टर की वीडियो कंसल्टेशंस बढ़ेंगी तो हमारी क्या कहते हैं दवाई की टेली कंसल्ट्स बढ़ेंगी और इन टर्न दवाई का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसी चक्कर में हमने प्रोडक्ट भी रिवैम्प किया था। मुश्तबा नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद हम टेली कंसल्टेशंस के बाद मैं और मुश्तबा रोटेट हुए थे B2B में। बेसिकली इसमें ये था कि हमें एक्विजिशंस करनी थी फार्मेसीज की। ये काम हमें डायरेक्टली CEO ने दिया था, मुझे और मुश्तबा को, फुरकान किदवाई ने। उसमें बेसिकली उसने हमें ये बोला था कि उनका एक डिपार्टमेंट था एक्विजिशंस का, मगर ना डेली एक्विजिशंस नहीं हो रही थी और कन्वर्जन रेट्स बहुत कम थे। काफी टाइम पे हो रहा था, जो सेल्स एजेंट थे वो बस क्या कहते हैं अपने अपने ऊपर से प्रोडक्ट्स निकालने के लिए होलसेल में बेच देते थे और यहाँ पे आके लिखवा देते थे कि प्रोडक्ट बेच दिया। फिर हम उसमें हमने पूरा एक रिटेलर सर्वे किया कि हम ऑन ग्राउंड गए जितनी भी फार्मेसीज हमें हमारे विसिनिटी में थी और जो उस एक्विजिशंस के टारगेट को मीट कर रही थी, हमने उन सबका एक सर्वे किया एक असेसमेंट लेने के लिए कि मार्केट गैप है कहाँ पे। वो मार्केट गैप हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हम उसको वापस ले आए कंपनी के पास। एक मार्केट गैप ये था कि जो रिटेलर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ऑर्डर करे। इसमें बेसिकली था ये कि जैसे दवाई.pk चल रही है, एक रिटेलर्स ऐप बना दी थी दवाई दुकान के नाम से। उसके लिए था कि जो भी रिटेलर्स थे उस एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते थे। तो उसमें एक बड़ा इशू ये आ रहा था कि वहाँ पे उस एप्लीकेशन पे है ही नहीं कि क्या कहते हैं कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, चीज का अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो कब तक आएगा। तो हमने उस पर लाइव इन्वेंट्री लेके आए कि जो रियल टाइम अपडेट होती रहे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर पैनाडोल हमारे पास स्टॉक हुई हुई है तो पैनाडोल की हमारे पास अभी कितनी इन्वेंट्री है, ताकि उस हिसाब से जो रिटेलर ऑर्डर दे सके। क्योंकि अमूमन होता ही है, तीन चीज़ें होती थी, चार चीज़ें उसने ऑर्डर की हुई होती थी और फिर उसको ये नहीं पता होता कि कितनी अवेलेबल है। इस वजह से एक्विजिशंस कम हो रही थी। एक मिनट सजवर, ये इन्वेंट्री के लिए कोई सिस्टम स्पेसिफिकली यूज करते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? सर इसमें अलग अलग सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सर एक जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होती है नहीं, और कौन सा इस्तेमाल करती है जस्ट इन टाइम? ये तो सारे फिलोसफीज है ना, ये तो सारी एल्गोरिथम्स है। दवाई कोई सिस्टम इस्तेमाल करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए? सर इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हम जब काम कर रहे थे इस पे तो हमें बस इतना हमें जो इन्वेंट्री देख रहे थे डिपार्टमेंट्स वो बैठे होते थे वहाँ पे, उनकी ब्रांच थी वहाँ पे सिंधी मुस्लिम में, और हमारा जो ऑफिस था वो PCHS में था। ठीक है, मगर जो इन्वेंट्री पोजीशन थी वो लाइव वो अवेलेबल होती थी बेसिकली? हाँ सर पहले नहीं थी ये मुश्तबा, मैंने इस पे जो सर्वे किया था एक्विजिशंस के डिपार्टमेंट के लिए उससे हमने शॉर्टफॉल निकाला था कि क्योंकि इन्वेंट्री अपडेटेड है नहीं और रिटेलर को पता नहीं कि कितनी इन्वेंट्री लगी हुई है, तो अब वो फॉर एग्जांपल अगर चार चीज़ें ऑर्डर कर रहा है तो उसको आधे घंटे
बाद दवाई के से कॉल आती थी कि आपने ऑर्डर ये प्लेस किया, उसमें से ये चीज नहीं। हम लोग लाइव लेके आए ताकि जी बिल्कुल एक्विजिशन। सही। ये तो एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है ना, कस्टमर जो है वो, मतलब कस्टमर की तो सीधी सी बात है हट जाएगी कि यार मैंने ऑर्डर किया, आधे दिन एक दिन के बाद आप मुझे बता रहे हैं कि 2 चीज अवेलेबल नहीं है, मैं कहीं और से ही ले लेता भाई। जी सर, ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल था, ये हमें सर्विस के थ्रू पता चला था जब हमने ऑन ग्राउंड किए थे। तो उसके आगे बाद आगे आगे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी पे थे। ठीक है सर, फिर जब ये हो गया था तो हम उसकी B2B के एक्विजिशन के बिजनेस ग्रोथ की हमने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी, कि जिसमें हमने बेसिकली बोला था कि आप कराची को लॉजिस्टिकली एरियाज में डिवाइड कर दें और उनको सब डिवाइड कर दें डिफरेंट एरियाज में। फॉर एग्जांपल अगर कराची जोन है, उसमें साउथ जोन है कराची का, उसके अंदर 5 से 6 एरियाज हैं, आप उनको सब डिवाइड कर दें और हर 2 सब डिविजन्स का एक लीड हो जो फिर उसकी एक्विजिशंस को देखता रहे। और एक मैप आउट हमने बना दिया था कि रफली कराची का पूरा ये मैप है और उसमें कितनी कितनी पोटेंशियल फार्मेसीज हैं जो हम टैप इन कर सकते हैं। वो हमने पूरा एक उनको मैप बना के दवाई को सबमिट किया था पूरे एक स्ट्रक्चर के साथ कि अब इसको कैसे आगे लेके जाया जा सके, ताकि साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी हो और एक्विजिशंस के साथ कन्वर्जन भी होती जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने एक्विजिशन कर ली तो उस दिन ऑर्डर लगा और उस दिन ऑर्डर लगाएंगे। पूरी इस हिसाब से ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कितने एजेंट्स जाएंगे, एक जोन में कितने एजेंट्स होंगे, फिर उसके कितने मैप आउट किया। और फिर एक टास्क फोर्स एप्लीकेशन हमने उनकी रिवैम्प करवाई थी। बेसिकली जितने उनके सेल्स एजेंट थे उनकी उनको एक एप्लीकेशन दी हुई थी टास्क फोर्स। उस पर वो करते क्या थे, जब वो सुबह घर से निकलते थे एक्विजिशंस करने के लिए, वो लॉग इन करते थे, मगर उसमें क्या कहते हैं अपडेट्स नहीं आ रही थी और उसमें ये नहीं था कि फार्मेसीज कितनी है नहीं है। तो हमने ये किया था कि जितनी भी अब एक्सटेंसिव रिसर्च हो नहीं सकती थी, तो हमने एक बेसिक निकाला था कि जितनी भी गूगल मैप से फार्मेसीज आ रही हैं, आप उनको ट्रांसलेट डाउन कर दो उस टास्क फोर्स एप्लीकेशन पे। और क्या कहते हैं आप उस पे क्या कहते हैं जो राइडर है, वो जब कोई कहता है कि मैंने एक्विजिशन की है, तो उसकी पूरी एक आप डिटेल उससे फिल करवाए। ये ना कि उसी वक्त वो करवाता रहे, कुछ रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाए, पिक्चर्स अपलोड हो जाए उसी एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि जो भी डाटा हो हमारे पास फाइल होता हो और जो एजेंट है वो क्या कहते हैं टीम को बेवकूफ़ ना बनाता, की वजह से नहीं होता गया। तो अगर कोई शॉर्टफॉल है तो बाद में क्या कहते हैं ऑपरेशंस के थ्रू से कोई बंदा जाके कंफर्म कर सके कि वाकई में एक शॉर्टफॉल था, और फिर उस हिसाब से आप एक चॉक आउट करके जाएं कि अब इसको कैसे सही किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड मुस्तफा। थैंक यू। So now I will take over from here. So for the campaigns, हमने campaigns के लिए जो recently campaign थी वो थी for dermatology. So Women's Day campaigns को हमने further उसको लेके गए थे dermatology last, उसमें हमने Women's Day campaign की थी और अब ये थी जो ये सक्सेसफुल वन ऑफ दिस टेली कंसल्टेशन की अब तक सक्सेसफुल कैंपेन रही है, बिकॉज क्योंकि इसका जो एवरेज पहले अगर आ रही थी एवरेज डे पर डे कंसल्टेशन आ रही थी वो आ रही थी 10 ज्यादा 15 हो जाती थी, तो अब वो 20 और 25 हो गई। सो दिस शोज के हमारी ये वाली कैंपेन बहुत इफेक्टिव रही है। इसके लिए हमने ये किया क्योंकि दवाई में एक चीज मसला था जब हम पहले आए थे कि हर चीज कोऑर्डिनेटेड नहीं थी और एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं कर रही थी। तो हमने मेक श्योर किया जो SMS PN ईमेल और सारे जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे और उस पे एक टैगलाइन जो है हमारी ऊपर बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन वो रहे। इसके लिए अभी हमने फर्दर जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में बाकी अभी रह गई है वो हो गई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो हमने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया हुआ है, उनसे रेट्स लिए हुए हैं तो और उनको अपने वो दिए हुए पैकेजेस। तो ये डर्मेटोलॉजी के लिए थी स्पेसिफिक, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका इन्फ्लक्स आता है डर्मेटोलॉजी में। साउथ सिटी के डॉक्टर्स हैं ऑन बोर्ड। सो स्किन के लिए जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ब्यूटी ब्लॉग्स वगैरह बहुत चलते हैं, तो हम टारगेट कर रहे थे उन्हीं लोगों को और उनको जो रूटीन स्किन केयर प्रॉब्लम। मैंने देखा होगा। जी तुम कह रहे हो ना आपने देखा होगा ब्यूटी ब्लॉग्स बहुत चलते हैं, तुम्हारे ख्याल में मेरी जिंदगी में ब्यूटी ब्लॉग्स देखने के अलावा कोई काम नहीं? नहीं सर सर ये मेरा मतलब था कि आपने कभी ना कभी तो देखा होगा ना। मैंने ये डिटरमिन किया है कि ब्यूटी ब्लॉग्स बहुत चलते हैं। हाँ सर चलते हैं, इंस्टा पे यही चलता है। क्योंकि मैंने नहीं देखा। अच्छा सर हमने इसको टारगेट किया है। फर्दर मूव कैंपेन्स में हमारा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया था, क्योंकि हमारी
बहुत पोटेंशियल मार्केट थी वो, लेकिन इतना डिले हुआ उस पे IBA से, हबीब से भी, CBM आ गई थी काफी हद तक, ज़ेबिस आ गई थी, फिर वो लॉकडाउन लग गया, तो फिर उसमें फिर हम उसको पार करना पड़ा वहीं पे ही। फिर हम इसको दोबारा उठाएंगे जब ये थोड़ा लॉकडाउन खत्म होगा। सो हमें वो पोटेंशियल मार्केट हिट करनी है। इसके बाद कैंपेन्स में ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा ब्रांड डेवलपमेंट, अच्छा टेली कंसल्टेशंस, और हमें ओवरऑल दवाई का भी थोड़ा बहुत काम दिया गया था मुझे इसमें एंड में। मुझे बोला गया था कि पार्टनरशिप्स वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दो, तो मैंने इसके लिए फूड पांडा ऑनबोर्ड किया था। अच्छा, फूड पांडा थोड़ा आपको लगेगा कि वो भी ई-कॉमर्स है, हम भी ई-कॉमर्स हैं, तो वो मेडिसिन नहीं बेचते और हम खाना नहीं बेचते, so we collaborated with them। तो अभी ये रिसेंटली चल रहा है, यानी मैं इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था लास्ट अभी 2-3 दिन पहले। तो इसमें ये हो रहा है कि फूड पांडा शॉप से एक नया वर्टिकल आ रहा है, सो दे कॉन्टेक्टेड मी डायरेक्टली के बिकॉज आई वर्क एट फूड पांडा पहले, तो उन्होंने बोला कि दवाई से कोलैबोरेट करके तो हमें, यानी हमारा एक ऑनलाइन स्टोर फूड पांडा शॉप्स पे क्रिएट हो जाएगा। उससे ये होगा कि जैसे कोई फूड पांडा शॉप्स में अगर शार फैसल के अराउंड, स्पीसीज के अराउंड कोई भी 4 या 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, तो उसको 30 मिनट के टाइम में दवाई डिलीवर हो जाएगी थ्रू दवाई ऐप, यानी थ्रू दवाई का स्टोर जो उस पे फूड पांडा पे खुला हुआ है। तो ये हमारे लिए भी विन था, क्योंकि मैंने इनसे CEO को ये प्रपोज किया कि हम इससे अपना इन्फ्लक्स देख लेंगे कि हमारे कितनी डिमांड है, और एक तो फूड पांडा ज्यादा यूज करते हैं लोग एज कम्पेयर टू दवाई, तो हम अगर उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमें हमारा ज्यादा गेन होगा, बिकॉज हमारा इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। देखो बात मैंने ये है मुस्तफा कि जो ई-कॉमर्स का कस्टमर है ना, अगर वो फूड पांडा यूज कर रहा है, इसके पीछे ऑब्वियसली थीम ये होती है कि अगर कोई फूड पांडा इस्तेमाल कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो एक ई-कॉमर्स कस्टमर है। अगर वो खा सकता है फूड पांडा से, तो वो दवाई भी मतलब एक ऐप के थ्रू मंगवा सकता है। अब उसको सिर्फ रीच आउट करना है और उससे कनेक्ट करना है। तो ये जो आप करते हैं ना, क्रॉस इंटीग्रेशन आप करते हैं विद डिफरेंट एप्स, उसका पर्पस ये होता है कि यू रीच आउट टू अ कस्टमर हु इज ऑलरेडी एन ई-कॉमर्स कस्टमर, उसको आप अपना सेगमेंट की तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि यार अगर अभी तक दवा नहीं ले रहा था भाई तू, तो अब आके दवा ले लो। यस सर, तो मेरा यही पर्पस था कि अगर कुछ, क्योंकि CEO वाज रेजिस्टेंट शुरू में, क्योंकि वो बोले था हमारा डाटा ले लेंगे, ये ले लेंगे। मैंने बोला सर, जब अपना कैटलॉग अपनी मर्जी से बनाएंगे तो अपना OTC वाले प्रोडक्ट रखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन वाले प्रोडक्ट रखेंगे नहीं। सो इससे ये होगा, अगर 6 महीने करके देख लेते हैं, मार्केटिंग भी हो जाएगी हमारी, अगर नहीं चलता तो वापस ले लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, ऑल्दो कि देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बेनिफिट है वो रिस्क को आउटवे करता है। और इसमें क्या है ये बताओ जरा। किसमें? अच्छा, BTL विद जंप एक्टिवेशन जो है हमारा अभी चल रहा है कि हम BTL एक्टिविटीज करेंगे, इसमें अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, फार्मेसी। वो तो इसमें रिस्क क्या है तुम्हारा? अच्छा, इसमें सर रिस्क ये डाटा शेयर हो जाएगा, मुझे जहां तक पता है कि उनको पता चल जाएगा कि हमारे उनका OTC प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं, और वो पांडा मार्ट पे फिर वही पुश करेंगे। अब ये चीज हमने मेक श्योर लॉन्गर रन तो आपको फायदा ही देती है। दूसरी बात ये कि इसमें रिस्क ये है कि आपकी अपनी एक ब्रांड पोजीशनिंग होती है ना, ठीक है, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग फिर कहीं नहीं रहेगी। आप कहते हैं कि जी वो फिर रेस्टोरेंट्स, अगर आप फूड पांडा पे कहते हैं कि जी दवाई स्टोर खोल दें, तो फिर आप रेस्टोरेंट के साथ भी एक केबिन लगा दें दवाओं का, ठीक है। हाँ सर, ये है कि आपकी जो ब्रांड पोजीशनिंग होती है ना, वो जरा सी इम्पैक्ट होती है उसमें, लेकिन ये कि इट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग। सर यही मैंने इनको पिक किया, देखते हैं इस पे क्या, अभी पायलट प्रोजेक्ट रन होगा अभी कुछ नेक्स्ट वीक। चलो सो BTL विद जंप एक्टिवेशन, BTL में हम कर रहे हैं अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, फार्मेसीज, ऑफिस मना कर दिया। हम 3-4 चीजें कर रहे हैं कि अभी अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, फार्मेसीज 3 चीजें कर रहे हैं। तो इसमें हम ये कर रहे हैं, मैं वहीं पे सोच रहा हूँ इसका और आगे जाएंगे ना जरा सा तो इसका एक मतलब कोई ये भी कह सकता है कि भाई फिर ठीक है, आप जो होटल्स में मेन्यू होता है उसमें आखिर में फिर एक पेज दवाओं का भी ऐड कर दें कि जी वो जो ज्यादा तेल वाले और घी वाले खाने ऐड करते हैं और चर्बी वाले खाने खाते हैं, उसके बाद जो है वो ये दवाएं जो है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। सर लेकिन आपका आइडिया अच्छा है इस वजह से, क्योंकि अगर होटल्स में हम अगर फ्लायर्स वगैरह लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है एंड में तबीयत खराब हो तो बंदे को दवाई का ख्याल तो रहे। तो
इसका क्या कहते हैं, हाजमूला तो बिकी जाएगी। हाँ सर हाजमोला ओटीसी है हमारा शायद। चलो खैर आगे चलो। सर फिर बीटीएल में हम जंप एक्टिवेशन हम कर रहे हैं अभी। जंप एक्टिवेशन लार्जेस्ट यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी जंप एक्टिवेशन है। इन्होंने रैकेट के साथ किया हुआ है, इन्होंने जीएसके के साथ किया हुआ है। सो बीटीएल एक्टिविटीज कराना जरूरी है क्योंकि मास मार्केटिंग इनको करनी थी, तो इस वजह से इन्होंने जंप के साथ काम किया हुआ है। इनकी फिगर मैं अगर आपको कोड करूं तो 11 से 12 लाख की थी, जिसपे ये लोग इनके साथ अभी काम करेंगे। फ्लायर्स पोस्टर एंड स्टैंडीज हमने बनवाए थे, इसके लिए इनको डिजाइन दिए थे बनवा के अगर बीटीएल में कर रहे हैं तो आप इस तरह प्रमोशन करें। इन क्लिनिक प्रमोशंस भी होंगी कि ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर था, उसके साथ हम लोग ने कोलैबोरेट करके उनके अंदर जो है हमने फ्लायर्स पोस्टर एंड स्टैंडीज भिजवाए ताकि हमारी मैक्सिमम प्रमोशंस हो। ठीक है सर इनके डीवीसीज भी आ रहे हैं अभी। आज शूट है उसकी पूरे दिन की। सो इनके डीवीसीज में एक ह्यूमर, थोड़ा चीकी ह्यूमर है, एक में इमोशनल है। तो ये अभी जून 18 से 20 तक की टाइमिंग में ये डीवीसीज लॉन्च करेंगे। सो सर मैसिव अपस्केल आएगा अभी। आपको अगर मोस्टली किसी ने दवाई सुना भी नहीं होगा तो वो भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी एक मैसिव बीटीएल और अगर डीवीसीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मास मार्केटिंग होगी। सो रिसेंटली इन्होंने एक राउंड भी जो है रेस किया है, मेरे ख्याल में सीरी ए है, तो वो भी अभी हाईलाइट होगा, यानी एक मीना बाइट्स पे शायद शेयर भी हो। हाँ तो सर अभी आप मैसिवली देखेंगे दवाई को के हर जगह आते हुए। इजी पैसा अभी ऑन बोर्ड किया है। एक मसला ये था टेली कंसल्टेशन में कि पेमेंट का, मैंने इनको बोला था सीओडी, लेकिन सीओडी हो नहीं सकती टेली कंसल्टेशन में। टेक्निकली अगर होगी भी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत इफेक्टिव चाहिए लॉजिस्टिक्स उसके लिए। तो मैंने बोला था इजी पैसा है, अभी इजी पैसा ऑन बोर्ड आ गया है इनकी पेमेंट्स के लिए, अब जैस कैश को लेकर आना है। मसला ये होता है एपीआई इंटीग्रेशन में दोनों की, उसमें बहुत टाइम लेते हैं कि अगर इजी पैसा आ रहा है और जैस कैश आ रहा है तो उनकी एपीआई इंटीग्रेशन करानी होती है दवाई के साथ, और वो लोग इतने सुस्त होते हैं कि वो फिर बहुत लेट करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वेंडर्स बहुत होते हैं। तो अभी इसी पैसा करा, आगे जैस कैश कराएंगे। ओवरऑल दवाई की ब्रांड डेवलपमेंट और कमर्शियल के लिए वी हैव डन अ लॉट, और अभी यानी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गॉट एन ऑफर टू। सो नेक्स्ट जो है उसके पास जोहाद करेगा टेक ओवर। Thank you, Mustafa. So, sir, I was basically working for the category management, mainly pharmaceutical category के लिए, जो उनकी pharmacy है उसके लिए। इसमें मेरा role was predominantly के जो brands हमारे साथ on board हैं, उनके साथ हम अपनी पार्टनरशिप्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से उस पार्टनरशिप को ग्रो कर सकते हैं, और हम उनके साथ मार्केटिंग पार्टनरशिप्स किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ब्रांड्स ऑन बोर्ड तो आपने कर ली ऑन फार्मेसी, बट यू वांट के ब्रांड भी ग्रो करें और साथ साथ आप भी ग्रो करें, तो उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि यू build marketing partnerships with the brands. So my key role was कि इन न्यू जो मार्केटिंग पार्टनरशिप्स हैं ब्रांड के साथ, उनको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उनको क्या हम एडवर्टाइजिंग ऑफरिंग्स दे सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ये सब रिसर्च करना और फिर इस पे ब्रांड प्रपोजल्स बनाना। तो ओवर द कोर्स ऑफ माय ड्यूरेशन मैंने काफ़ी ब्रांड प्रपोजल्स बनाए हैं, जीएसके के लिए, फाइजर, सारी बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनके साथ ऑन बोर्ड हैं, तो उनके लिए ब्रांड प्रपोजल्स आई डिजाइन। इसमें बहुत सारी ऑफरिंग्स हमारी काफ़ी स्टैंडर्ड ऑफरिंग्स हैं जो कि हमने हर वी पिच टू एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी, बट अगेन आई रिसर्च ऑन डिफरेंट possible new advertising offerings that we can provide to these to our brand partners. So in that respect, I found a new product. Basically, I pitched a new product which was a lifestyle change program, which can be basically a 3-month program. जिसमें एक trained coach would train for people with diabetes to live a better health lifestyle. And this was something we proposed to our diabetes partner Roche. They were very keen on doing that. अभी जो है उस पे थोड़ी मतलब उस पे recent बातें हुई हैं. It has not entered into the execution phase, but they have shown a positive response to building a partnership on that particular thing. So mainly एक तो ये part है. Mustafa, next slide.
बाकी इसके अलावा, और जैसे मैंने बताया कि एक तो ब्रांड प्रपोजल्स पिच करना, देन दूसरा इसके उन पार्टनरशिप्स को ग्रो करना. तो फॉर दैट I had to come up with different promotion campaigns as well as calendars. तो मैंने जैसे अगर हमारी पार्टनरशिप हो गई with Pfizer, so I made like 6 month marketing calendar for Pfizer of what we will offer to them and when will that be offered. तो प्रॉपर कैलेंडर्स जो उनके लिए हम बना सकते हैं, फाइजर के लिए बनाया मैंने, उसको जो है रोश के लिए बनाया. और रोश का हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो 3 मंथ का कैलेंडर जो है वो सारा मैंने अलाइन किया. उसके अलावा द एक्चुअल कैंपेन्स जो हम इनको पिच कर सकते हैं, दैट वी डिड. सो वीट हमने रिसेंटली ऑन बोर्ड किया था इन अप्रैल. वीट मैन इनका जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वीट हमारे पास पहले से था बट वीट मैन इन्होंने हमें न्यू लॉन्च किया था. सो वी वर्कड विद देम कि आप यू गिव अस अ हायर मार्जिन, अ बेटर मार्जिन, तो हम कंज्यूमर को थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट पास ऑन करके इसका अपटेक देख सकें. सो फॉर दैट हमने जो है नॉर्मली प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके 10% पे डिस्काउंटेड होते हैं, 15% पे हमने एक कैंपेन रन किया था ऑन ऑल वीट प्रोडक्ट्स. और इसकी पूरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम CRM टू आपका सोशल मीडिया, बेसिकली PN, SMS, ईमेल एंड सोशल मीडिया एड्स, वो सब जो हैं आई डिजाइन देम. एंड उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है. तो दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू प्री कैंपेन, कैंपेन एंड पोस्ट कैंपेन. वो दोनों ग्राफ, लेफ्ट पे जो ग्राफ है दैट इज शोइंग ऑर्डर्स इन क्वांटिटी. तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 डे सिर्फ कैंपेन था, बट इस 5 डे का कैंपेन एंड जो ऑर्डर्स एंड क्वांटिटीज हैं वो दैट सरपास द प्री कैंपेन. और प्री कैंपेन पीरियड इज बेसिकली 39 days बिफोर द कैंपेन, और पोस्ट कैंपेन इज 39 days आफ्टर द कैंपेन. तो जितनी सेल्स हमारे, जितने ऑर्डर्स हमारे 39 डेज बिफोर कैंपेन आए थे, वो हमने सिर्फ 5 डेज में हिट कर दिए थे. और उसकी क्वांटिटी तो कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि वन थिंग इज कि आप अगर कस्टमर ऐप पे डिस्काउंट देते हो तो उसका एडवांटेज रिटेलर्स भी लेते हैं. रिटेलर्स कम ऑन टू योर प्लेटफॉर्म एंड दे ऑर्डर एज वेल. तो ऑब्वियसली रिटेलर्स ने डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था तो स्टॉक किया होगा, इसीलिए जो ये ऑरेंज आपको क्वांटिटी की बार दिखती है वो काफी हाई है. बट ओवरऑल अगर हम GMV की बात देखें तो अगेन जो GMV है दैट वाज अ लॉट हायर. 5 days में भी सरपास प्रीवियस प्री कैंपेन्स लेवल्स. और द गुड थिंग इज कि इट हैज स्टेड अपवर्ड. इट वाज नॉट लाइक समथिंग कि लोगों ने सिर्फ स्टॉक किया एंड देन द बेस डिमांड जो है वो fell off. Through advertisements वगैरह we were able to get new recruits for the product. That's why the base level has increased. तो ये वीट के लिए एक प्रमोशन कैंपेन था. नेक्स्ट स्लाइड मुस्तफा. इसी तरह 1 month एक्सटेंसिव रमजान कैंपेन, दिस इज समथिंग आई प्रपोज कि वी कैन डू अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कैटेगरी काइंड ऑफ sales promotion. Because in Ramadan people are normally looking for solution buying. They are going for groceries, they are going for buying bundles and etc. So rather than pitching just one particular brand, we make different bundles and customized bundles according to the user data we have, and pitch them to our consumers. So basically we came up with 4 bundles, and these were basically energy bundle, aftar bundle, safai bundle and kids bundle. तो पहले तो इनकी पूरी प्रॉपर प्रोडक्ट बंडलिंग जो है, आई वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट कि कौन से बंडल्स वी शुड पुट इनटू दीज, उन पे क्या डिस्काउंट्स होने चाहिए. इसमें थोड़ा सा आइडियली कुछ बंडल्स जो हैं, जैसे आपका एनर्जी बंडल है, उसमें कोई एक बड़ा नीच प्रोडक्ट हमें डालना पड़ा था, नेस्ले का न्यूट्री फैक्टर, नेस्ले का, बिकॉज वो थोड़ा सप्लाई एंड के इश्यूज आ गए थे तो उसको भी केटर करना पड़ा था. But overall we developed these 4 bundles. Then इसकी पूरी marketing communication for the whole Ramadan month that I came up with. और इससे जो है आपका इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है, बास्केट साइज आपको इंक्रीज करनी थी, तो इट वेंट अप बाय 10%. और आपके जो पूरे जो मार्केटिंग पे हमने स्पेंड किया था उसका रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो था वो कुछ आपका 18 times था. So this was on the Ramadan campaign. इसके बाद we also did an Eid campaign. It was not just a category management, मतलब particularly pharmacy से related नहीं था. It was a basically platform wide sales promotion that we all as a marketing department, commercial department planned out. तो वो उसी कैंपेन का स्पाइक बहुत ज्यादा था, और उसका भी डेटा जो है हमने उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं फॉर्म की है, बट इट वाज अ प्रीटी बिग स्पाइक, और वो भी काफी कैंपेन था जो वी ऑल केम अप विद टुगेदर. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, ब्रांड अलाइनमेंट, दिस इज समथिंग ये मुझे CEO ने रिसेंटली क्या कहते हैं असाइन किया था.
what happens right now is कि हमारे दो customer facing departments हैं, एक है CS जो कि customers को call करता है, and the second is the community management department जो social media पे customers से interact करता है. अब इन दोनों departments में कोई sync नहीं है. Ideally if you're talking to customer और क्योंकि उनकी repeated queries होती हैं तो there is a proper policy और FAQ तो है कि भाई ये चीज़ पे इतने दिन लगते हैं delivery delays में, but there is no standard way of communicating that. Obviously standardization you can only promote to a certain level वरना वो automated responses की तरफ चला जाता है. We did not want that, but key issue we highlighted, I and Mustafa वगैरह we all highlighted कि there is lack of consistency when we are talking to customers. तो हमारा कोई एक प्रॉपर जो है टोन सेट नहीं है और हमारी कोई कंसिस्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. तो इस पे फॉर द इनिशियली जो है मुझे सीईओ ने जो है ही तो असाइन विद दिस प्रोजेक्ट कि आप सीएस और कम्युनिटी मैनेजमेंट को ऑन मेजर की इश्यूज जो है उनमें अलाइन करें आप. तो उसमें मेजर की इश्यूज थे हमारे डिलीवरी के. मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स फेस द इशू ऑफ डिलीवरी डिलेज और दे फेस द इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी क्योंकि इनके थोड़े से सप्लाई एंड पे इश्यूज चल रहे थे. इस वजह से इनके डिलीवरी के इश्यूज रहे हैं और कस्टमर्स काफी इससे जो है नाराज होते रहे हैं. तो अब उसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहते हैं एक पेज पे लाना वाज माय जॉब. और उसको लाने का तरीका ये था कि ब्रांड बेसिकली परसेप्शन जो है वो सही कम्युनिकेट हो रहा. व्हाट दैट मींस इज कि पहले अभी क्या होता था कि कस्टमर कॉल करता था कि मेरा ऑर्डर डिले हो गया है या मेरा ऑर्डर कब रिसीव होगा मुझे. तो द सीएस टीम और द सोशल मीडिया टीम वुड से कि हम कराची में जो है वो क्या कहते हैं एक दिन के अंदर डिलीवर कर देंगे, बट कराची के बाहर क्योंकि हम नहीं हैं तो हम TCS के थ्रू कराएंगे तो 3 दिन, which was creating a very wrong perception because we operate Pan Pacific. So CEO wanted कि यार ये perception ना जाए कि कराची वालों को exclusive treatment मिल रही है. What we do is we change that communication in somehow to give it a better view and give it a better perception about the brand. So I devised a new communication. इसके लिए extensive coordination किया मैंने CS के साथ, social media team के साथ, and I brought them on a single page on this. इसी से रिलेटेड जो है मुझे अभी रिसेंट सीईओ ने काम दिया है कि हमारे प्रॉपर जो ब्रांड गाइड है, अभी सिर्फ ब्रांड गाइड जो है दैट इज लिमिटेड टू क्रिएटिव इन अ सेंस कि हमारे ब्रांड कलर्स अलाइंड है कि दवाई इज ब्लू और दवाई का लोगो जो है वो एक डिसाइडेड है ब्रांड गाइड में. उसके अलावा ब्रांड गाइड में और कुछ भी नहीं है कि उसकी क्या पोजिशनिंग है, क्या ब्रांड की टोन होनी चाहिए. तो दीज आर थिंग्स दैट आर सिवियरली लैकिंग क्योंकि जो सीईओ है हिमसेल्फ ही इज फ्रॉम अ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड. तो ही डज नॉट एक्चुअली सी the utility of extensive branding. So but it was something जो कि मैंने ही उनको extensively point out किया था कि branding in the long run would help you क्योंकि since we are making different campaigns, अब मैं भी brands के लिए campaigns बना रहा होता हूँ, there is a lack of consistency कि टेलीकंसल्टेशन में ये लोग जो campaign बनाते हैं ये लोग अपने हिसाब से टोन रख रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कुछ टोन रख रहा हूँ. there is no particular brand tone set right now. तो ही हैज पुट मी ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो मैं जो क्या कहते हैं उसका ब्रांड गाइड डेवलप करने के लिए अभी फिलहाल रिसर्च फेज में हूँ. इंटरनली मैंने रिसर्च कंडक्ट की है. अभी नेक्स्ट फेज इसके मैं कस्टमर्स को जो है वो वर्चुअल फोकस ग्रुप्स के लिए अप्रोच करूंगा एंड आई विल टेक देयर फीडबैक एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. सो इट्स समथिंग आल्सो दैट आई हैव बीन असाइन्ड बाय द सीईओ. So that's at my front. बाकी आज मुस्तफा टोल के वी गॉट ऑफर. तो अभी जो है मेरा न्यू रोल जो है मेनली वो ये है कि मुझे ब्रांड पार्टनरशिप से हटा के आई हैव बीन असाइन्ड टू लुकिंग आफ्टर द लैब्स. तो अब मैं लैब्स का एज अनऑफिशियली प्रोडक्ट मैनेजर काइंड ऑफ एक्ट कर रहा हूँ जहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो द लैब साइड ऑफ द लैब बिजनेस ऑफ दवाई. सो उधर का ये मेरा पूरा न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है. साथ साथ उसके साथ ये जो ब्रांडिंग गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल बी टेकिंग साइमल्टेनियसली. गुड जात. तो क्या सबको ऑफर आ गई है या कुछ लोगों को आई है? कुछ को आई है, 4 को आई है. इसको नहीं आई सर ईमान को नहीं आई. सर मेरी से बात हुई थी अलग से. So she gave me an open we had an open discussion about it. She was like HR maybe she has positions open even for social media marketing, but फिर उसके बाद I wasn't as interested in working officially there as an employee, so I never followed up. ठीक है, गुड. लेकिन आई होप दैट जो मुझे नजर भी आ रहा है that you have learned a lot in this project, and obviously it is only a testimony that they've given
all of you that importance that they've offered you jobs and they are satisfied with your work, right? So good work. Thank you very much. And I hope you'll submit all the documents in time that you have to on LMS, right? Thank you.